the game of tennis ball cricket here in Padga. Shahid Khan, very experienced left-handed, stylish, elegant batsman with Babu Nachan. So this is good combination. Babu Nachan is a right-handed batsman. Yes, once more remind you, Shahid Khan and Babu Nachan, these two are the openers. And both openers would like to give flying start for their side. Shahid is going to take the strike for the first ball, and it is going to be Rutik from the far end, that is from the Kurund village end. Yes, Rutik open the bowling attack, facing him Shahid Khan. There is a short third-man, short fine leg, two men outside the ring. There we watch Rutik turn from Khaling end, facing him Shahid Khan. Goes to Shahid, hits in the Arias is gone. What a prize wicket claim by Rutik. Shahid hits hard, but is straight to fielder. The end for the fielder. Fielder made absolutely no mistakes. So wicket on the first ball. It's a super start in this super trophy for Kandli team. Yes, absolutely true. Shahid Khan is out for duck, but I think very good taken by the fielder in covers because rapid stroke from Shahid Khan. Shahid Khan is out for duck and BCC not for one. New batsman in Zarar Mullah, one of the complete technique batsmen, facing Rutik. Two men outside the ring, one at deep cover and one man patrolling right on the long on boundary. It is very important to play in the gap, especially in power play overs. Yes, absolutely true, because there is a mandatory power play going on, but what a start from Kandli. This time Zarar pulled his ball high in the air, one ball, no, is crossed the fence for six. What a start from Zarar Mullah. Position to pull that one and dispatched over the spins for a 6 runs. Not a very good delivery because long on setup and a pitching a dropping shot. Here we watch Rutik facing him Zarar Mullah. Goes to Zarar, hits nicely through the extra cover, couple of bounces, cross the boundary for 4. What a start from Zarar. Is looking very dangerous and is making his intentions quite clear. They have lost the wicket of very first ball, wicket of Shahid Khan, big wicket, but it doesn't matter for Zarar Mullah. That was almost a half volley outside the off stump and he smashed it over extra cover. Lovely stroke, one of the best strokes of the game. Yes, firmly driven, picks on the off volley. This time uses feet, but well thoughts from the bowler, right on the block hole, all on the ground to long on. And Zarar gets one. BCC 11 for the loss of 1 wicket. Shahid Khan is out for duck. Zarar on 11. Now Babu Nachan on strike. Just look at the bowler. Rutik is not that experienced. Is young bowler, but trying good things for his side. Rutik goes to Babu. Beauty. Just past the bat.
around the off stump, well collected by wicketkeeper. Lovely ball from Rutik. Yes, absolutely, and little bit away movement to the right hand batsman. Good delivery that was from Rutik. So far, good over for both the sides. 11 runs on the board for BCC. Rutik. Goes to Babu Najan, ball him around the legs. What a ball and what a poor shot played by Babu Najan. Babu Nachan, he went too far across and tried to work it on the onside, missed the line of the ball completely, and the leg stump goes out of the ground. So 2 wickets in first over. Successful over comes to an end from Rutik. It's 11 for the loss of 2 wickets. BCC after being asked to bat first by Kanli's captain. Ajay, I think this is the good start from Kanli because they claimed 2 important wicket back to back. Shahid Khan, one of the great players, he is out for duck, and Babu Nachan is out for duck. Zarar is still showing his class and in good touch. But I think the 100 marks goes to the bowler who consider 11 run and claim 2 wickets. This is the good start from Kanli's bowler Rutik. बिल्कुल, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम ऋतिक की, क्योंकि एक तो युवा खिलाड़ी है और वैसे भी कांदली टीम का जो अनुभव है बीसीसी की तुलना में बहुत कम है। लेकिन पिछले 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं कि कांदली टीम ने, और कांदली के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर यदि कोई है तो वो मयूर जादव है, और वो मयूर जादव अब गेंदबाजी के लिए आते हुए टोलना का एंड से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जरार अच्छे टच में है, तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है इस ओवर में, जरार के सामने गेंदबाज मयूर। दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले के लिए कांदली ने अपने सबसे मेन वीपन को लगा दिया गया। ऑलराउंडर मयूर आए हैं गेंदबाजी को। सुपर ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ड्रोन मेडिकल की तरफ से पहली ऑफिशियल वार्निंग समय के लिए ड्रोन मेडिकल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सुपर ट्रॉफी के लिए। मयूर मैंडेटरी पावर प्ले की दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ जरार मुल्ला के लिए। ओ गुड लेन पे पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद कहीं ना कहीं रुक कर आई थी, हालांकि उतनी शॉर्ट नहीं थी जितना समझ बैठे थे जरार। और एक बात और आपने देखी होगी कि थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, बल्लेबाज को जिस उछाल की उम्मीद थी उससे थोड़ा ज्यादा उछाल था, और ये हो सकता है ये क्योंकि अच्छा कद है बॉलर का और बहुत बढ़िया बॉलिंग एक्शन भी है मयूर का। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म ओवर दी राइटी गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद इस मरतबा कारपेट के जरिए आउटफील्ड में काऊ कॉर्नर पे ड्राइव करते हुए जरार 1 रन। जरार पहुंचे 12 पर, बीसीसी 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। याहिया नाचन को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा गया है, याहिया खोद को भेजा गया है। हालांकि याहिया खोद की ये बात है कि पीटीसी के फॉर्मेट को हम देखते हैं तो ये बैट्समैन बहुत सफल रहा है, लेकिन यहाँ सराहना करनी होगी कांदली की, अभी तक आजादी बरतने नहीं दी है। जैसा हमने कहा कि 60 प्लस भी सेफ टोटल नहीं, इस मरतबा अपने स्टेप में चुके डेड बॉल का इशारा। सुपर ट्रॉफी का अगला मुकाबला दोनों टीमों को तैयार रहना है टॉस के लिए। जी हाँ, एक और बड़ा मुकाबला है इसके बाद विकी स्पोर्ट्स कुकसे और सरस्वती खालिंग के बीच में। एक तरफ बबलू पाटिल तो दूसरी तरफ विवेक शिलार। बहुत ही जबरदस्त बैटल होगा दोनों टीमों के बीच में। हवाएं बहती हुई, खिली हुई धूप, मुड़ते हुए मयूर। इस मरतबा ड्राइव किया, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि दूर गेंद जब तक दूर से खिलाड़ी आते 1 रन। देखिए आगे जरूर रखा था गेंद को, लेकिन फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा फुटवर्क चाहिए, विकेट से मदद हो या ना हो बॉलर के लिए, लेकिन आपका फुटवर्क हमेशा अच्छा चाहिए बतौर बल्लेबाज। जरार को ड्राइव किया, वो व्हाट अ मैग्निफिसेंट एथलेटिक फील्डिंग, 3 रन बचाए। हालांकि गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही थी, और इसे कहते हैं बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय लोग। शानदार फील्डिंग भूषण द्वारा। एक और युवा खिलाड़ी कांदली के अपने आप को झोंक दिया उन्होंने, डाइव लगाकर गेंद को रोका है, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। अभी तक बांधे रखा है बैट्समैन को इस ओवर में।
फुल टॉस गेंद, फिर कारपेट ड्राइव, मिड ऑन पे सीधा, कोई रन नहीं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और जगह नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर गेंदें उन्होंने अजय विकेटों में रखी। जी हाँ, खास तौर पर हम देखें तो ऑफ स्टंप की लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद फुल टॉस थी लेकिन लोअर फुल टॉस थी। मयूर राइट आर्म राउंड स्टंप्स। फिर से पैर नहीं चले थे, ड्राइव करना चाहते थे, वाइड ऑफ अली को बीट किया। कमाल का ओवर खत्म किया मयूर ने, 3 रन दिए। और कहना होगा कि बीसीसी की कठिनाइयां बढ़ती हुई। मैंडेटरी पावर प्ले का कोटा खत्म हुआ है, 2 ओवर में 14 रन आए और 2 विकेट। अजय, आई थिंक एक्सेलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस टू। बिल्कुल, जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी मयूर की और ऋतिक की। ऋतिक ने 11 रन जरूर खर्च किए लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए पहले ओवर में। और पहले ओवर में आप यदि 2 विकेट निकालते हो तो जरूर बैटिंग करने वाली टीम के बल्लेबाजों पर दबाव रहता है, और वही दबाव हम देख रहे हैं। मयूर ने वो दबाव बरकरार रखा, बहुत ही शानदार रणनीति के साथ बॉलिंग की उन्होंने, राउंड द विकेट अच्छी रफ्तार के साथ। और ज्यादातर आपने देखा कि फुलर लेन की बॉलिंग कर रहे थे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं की उन्होंने। उनको पता है कि यहाँ पर बाउंड्रीज बड़ी नहीं है, बहुत लंबी बाउंड्रीज नहीं है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी तो मार पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखना है अब तमाम निगाहें जरार मुल्ला पे टिकी हुई। हमारे बीच मंसूर शेख साहब भी हैं, उनका भी इस्तकबाल है। देखिए, दोनों ऑनफील्ड अंपायर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो रूल रेगुलेशन है आपको हर ओवर में कम से कम कैप्टन को बता देना है, क्योंकि इस तरह आईसीसी रूल के मुताबिक ये पहली मर्तबा हो रहा है। मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हुआ है, मेरे ख्याल से 4 खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर रहेंगे। जी हाँ, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 4 खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर रखने हैं नॉन पावर प्ले ओवर्स में, यानी कि 5 ही खिलाड़ी आप बाउंड्री पर रख सकते हो। जरार मुल्ला के पास स्ट्राइक, रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा यहाँ से बीसीसी को। तेज हवाएं बह रही है, विशाल मुड़ते हुए जरार को गेंद को ड्राइव किया है बहुत खूबसूरत अंदाज से, लेकिन फील्डिंग लाजवाब हो रही है आज। क्या कमाल की फील्डिंग हो रही है कांदली की तरफ से। हालांकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी थोड़ा स्ट्रेटिश था और जरार ने वहीं कोशिश की थी, लेकिन कमाल की फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। समीर घरत है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छा स्ट्रोक था हालांकि जरार का। जरार वी में बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, हमने कई बार देखा है। यस, स्ट्रेट ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। सीएम चषक का वो शॉट अभी भी आपके सामने होगा जो स्टैंड में मारा था। इस मरतबा ड्राइव किया, बैकलिप को नीचा रख के टक करते हुए ऑन साइड में, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। ये बॉलिंग है, कहीं भी जगह नहीं दी जा रही है, विकेट टू विकेट लाइन ऑफ अटैक रखा जा रहा है, और यही कारण है अजय कि रन आसानी से नहीं आ रहे। और ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं कांदली के गेंदबाज और उनके कप्तान। एक बहुत बढ़िया रणनीति के तहत अभी तक उन्होंने खेल खेला है, अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। ओह, बढ़िया गेंद, हल्का सा मोमेंट था तिप्पा खाने के बाद, और कहीं भी गेंद को पड़ा नहीं था जरार ने। और अब देखिए जरार की गाड़ी भी थोड़ी सी रिवर्स गियर में चली गई है। उन्होंने छक्के और चौके से शुरुआत की थी अपनी पारी की, बढ़िया आगाज किया था, लेकिन पिछली 6 गेंदें यदि हम देखें तो उन्होंने सिर्फ 4 सिंगल्स बनाए हैं। विशाल जरार को स्लोक स्वीप, ये जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। शॉट की बीसीसी बोरीवली टीम को, और मौका भी मिला वहां पर बैट्समैन जरार को। कमजोर गेंद थी, फुल टॉस, स्विंग किया ऑन साइड में और आसानी के साथ बाउंड्री को पार किया। मिड विकेट की दिशा में, स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ ये छक्का जरार के बल्ले से। स्कोर उछलता हुआ 22 रनों पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। कितना टारगेट अब बल्लेबाजों के मन में होगा, क्या स्कोर की तरफ वो देखेंगे यहाँ से? बिल्कुल अजय, मेरा अपना मानना है कि पहले मैच को हम देखते हैं तो शाहिद खान को पता है कि 60+ टेबल पे रखना ही होगा, बोर्ड पे रखना ही होगा, कम से कम 60। माना कि राहिल शेख मैजी को पड़गा बहुत बड़े गेंदबाज है, गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैंडेटरी पावर प्ले में जो 2 ओवर रहते हैं वो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी तक टोटल वैसा नहीं, लेकिन जरा
गियर बदल सकते हैं और बदल दिया है। और बड़ी पारी खेलने की हैसियत रखते हैं जरार मुल्ला। इस मरतबा आगे रखा था, गेंद को खोद के निकाला, गेंद काऊ कॉर्नर में पहुंची है, 1 रन बनता हुआ। हालांकि सोच कांजी के गेंदबाजों की भी लाजवाब है, लगातार विकेटों में गेंदें रख रहे हैं, उनको पता है बैट्समैन बड़े शॉट के लिए जाएंगे। स्कोर है 23 रन। सुपर ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पहला दिन सुपर डे सुपर ट्रॉफी का। इस मरतबा ड्राइव किया, हालांकि फिर बल्ले के नीचे लगी है और यही कारण था कि यहिया को टाइम नहीं कर पाए। दूसरे की कॉल और पूरा करते हुए यहां पर। हालांकि याया खुद जैसे भारी भरकम शरीर वाले बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है इस तरह से रन चुराना, लेकिन आखिरकार 2 रन कंप्लीट। तो एक और ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 25 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। बीसीसी बोरीवली इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। याया खुद की जो बल्लेबाजी अभी तक हमने देखी है सिद्दीक जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जोर से हिट करने का प्रयास कर रहे हैं? यस, और मैंने पहले ही कहा कि फुटवर्क कहीं ना कहीं उनका टेंटेटिव लग रहा है। अब 3 ओवर में 25 रन आए, 2 ओवर बचे। आइए सुनते, इस महाराष्ट्र में मात्र एक ऐसे कमेंटेटर है जो तीनों भाषाओं पे विद प्रोनाउंस कमांड रखते हैं, और वह सदाबहार कमेंटेटर अजय खरत डेथ ओवर में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी भावे। अगला मुकाबला देखना मत भूलिएगा, विकी स्पोर्ट्स कुकसे बनाम सरस्वती खालिंग पड़गा टेनिस क्रिकेट की 2 बड़ी टीमों के बीच में टक्कर रहेगी। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। आज का ये दूसरा मैच, पहला दिन है सुपर ट्रॉफी 2021 का। सुपर ट्रॉफी का सुपर आयोजन निवा पाटिल, रोशन पाटिल और त्रिशूल ठाकरे की ओर से, और बहुत अच्छा सहयोग पड़गा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन का उनको मिला है। और ये चीज़ हमने अक्सर देखी है, जब भी पीटीसी में टूर्नामेंट्स होते हैं तो पूरी पीटीसी की जो कमेटी है उनका अच्छा सहयोग मिलता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। 3 ओवर के पश्चात 25 रन बने हैं। कहीं ना कहीं जैसा सोचा था वैसा खेल अभी तक चला नहीं है बीसीसी के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो, लेकिन कांदली टीम ने जो सोचा था शायद उसके अनुसार ही उनका खेल देखने को मिला है। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने रणनीति बनाई थी उसी तरह से एग्जीक्यूशन भी रहा है उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अजय खरत, आपका जो गेम प्लान है वो मैच पे हावी होता है। कांदली के गेंदबाजों ने चैनल में गेंदबाजी की है, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदें नहीं रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहिया खुद ड्राइव अच्छा लगाते हैं। जरार तो आपने जैसे कहा होमवर्क बहुत अच्छा करके हैं, लेकिन डेथ ओवर बच्चे हैं, और क्रिकेट में वैसे भी पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होता है, क्योंकि जरार को भी पता है समय में कॉपरेट करें। जरार को भी पता है कि 50 प्लस तो रखना ही रखना होंगे, 60 प्लस पे जाता है तो अच्छा है, लेकिन आसार नहीं दिख रहे, आसार बनाना होते हैं। और जरार यहाँ से वो बल्लेबाज हो सकते हैं जो 50 के पार लेकर जा सकते हैं टोटल को। पहला लक्ष्य तो 50 का होगा। मयूर आक्रमण जारी रखते हुए लोअर फुल टॉस साढ़े बैट से खेल दिया है जमीनी रास्ते से, लेकिन गैप ढूंढा है। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिला है। ये एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा है अभी तक के खेल में कि फील्डिंग बड़ी शानदार रही है कांदली टीम की। अजय, आपको लगता नहीं कि पहला टूर्नामेंट है और इतनी लाजवाब फील्डिंग हो रही है कांदली की तरफ से? जी हाँ, ताज्जुब मुझे भी हो रहा है। पहले ही मैच में, पहले ही टूर्नामेंट में आप इतनी अच्छी फील्डिंग करते हो तो जरूर आपकी प्रशंसा तो बनती है। बढ़िया गेंद, कमाल के खिलाड़ी है मयूर यादव। बिल्कुल यॉर्कर लेन गेंद थी, ड्राइव किया उसको डीप मिड ऑन पर, लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन। क्या बॉलिंग हो रही है, क्या बॉलिंग हो रही है। बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कैफ रईस हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी इस्तेकबाल है। सिंगल डबल से कोई ऐतराज नहीं होगा इस समय कांदली के कैप्टन को। और इस बार ऊपरी किनारा लगा है बल्ले का। ओह, कैच ड्रॉप, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गलती हुई है, और पहली बार गलती देखी हमने फील्डिंग में। 2 रन लेने का मौका वहां पर जरार मुल्ला के पास। किस्मत वाले रहे थे, हालांकि ऊपर लगी थी। देखिए, फुल टॉस गेंद, 1 शॉट का इशारा अंपायर का आया है। यस, 1 शॉर्ट रन दिया है,
देखिए, इसे कहते हैं कि सही एड्रेस पे खत का ना पहुंचना। जहां गेंद को जाना चाहिए था वहां नहीं गई। और आपने जैसे कहा कि चैनल में बॉलिंग हो रही है, तो बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं अभी चैनल बदलने की आवश्यकता है। ओ ये देखिए खराब गेंद, इस बार कैच तो लिया गया है लेकिन बीमर गेंद है। ओ रन आउट की अपील, बहुत कुछ घटता हुआ इस एक ही गेंद पर, लेकिन नॉट आउट कह दिया है अंपायर ने। नो बॉल सही फैसला है, क्योंकि बहुत ऊंची फुल टॉस थी ये, लगभग कंधे की ऊंचाई तक आती हुई गेंद। हालांकि जरार ने अच्छा कार्य किया, बल्ला घुमाया उस पर, लेकिन डीप मिड विकेट पर कैच किया गया था गेंद को। 2 रन स्कोर में ऐड होते हुए स्कोर हुआ है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक पार्टनरशिप जरूर बनी है, दूसरा विकेट 11 पर गिरा था, लेकिन उस रफ्तार से अभी तक बल्लेबाज रन नहीं बना पाए हैं, जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है बीसीसी पड़गा बोरीवली टीम को। बीसीसी बोरीवली और एसएम स्पोर्ट्स कांदली के बीच में यह मुकाबला। अगली गेंद फ्री हिट, एक अच्छा अवसर यहाँ पर याया खोद के पास हाथ खोलने का। अभी तक कोई बड़ा शॉट उनके बैट से निकला नहीं है, कोशिश भरपूर कर रहे हैं। इस बार ओवर पिच ड्राइव किया, लेकिन वी में डीप में फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर सीधे फील्डर की तरफ बैठे और फ्री हिट का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए याया खोद। केवल 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि बीसीसी के पास भी बॉलिंग आक्रमण बढ़िया है, राहिल माजिद जैसे खिलाड़ी है, सिन्नान खोद है जो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं इस विकेट पर, लेकिन कहीं ना कहीं 50 की तरफ तो देखना होगा। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल सीधी सीधी गेंद। मैं समझता हूं कि ये गेंद बैट्समैन के पाले में भी थी, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। सीधे बैट से खेलते तो शायद चौका बन सकता था। ये रहता है दबाव, जब आप पे दबाव बिल्डअप होता है तो इस तरह के चित्र नजर आते हैं। कामरान पटेल हमसे जुड़ चुके हैं, तूफानी बल्लेबाज, आपका भी इस्तेकबाल है। जबरदस्त गेंदबाजी मयूर द्वारा, पहले ओवर में भी सिर्फ 3 रन दिए थे, ये ओवर भी अभी तक किफायती रहा है। कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर खेला है, लेकिन एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, और यहाँ पर अपना विकेट फेंक दिया है याया खोद ने। ऐसे लगता है कि जानबूझकर विकेट फेंका गया है। एब्सोल्युटली ट्रू। आपने जैसे कहा कि हालांकि वो क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, आज जब किस्मत खराब हो ना तो आप ऊंट पे भी रहे तो आपको चोटी काटती। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है, लेकिन यहाँ पर मयूर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। केवल 7 रन खर्च किए उन्होंने अपने इस दूसरे ओवर में, और कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 10 रन खर्च किए। 4 ओवर का खेल समाप्त, केवल 32 रन बना पाई है 4 ओवर के खेल में बीसीसी बोरीवली। 3 विकेटों का नुकसान हुआ है, और अब केवल 1 ओवर का खेल पारी में शेष। देखिए, पहली 4 गेंदों को आप निकाल देते हैं, वो 4 गेंदें कहीं ना कहीं बीसीसी की तरफ थी। विकेट भी गिरा था, जरार ने 3 गेंदों में 11 बनाए थे, लेकिन उसके बाद का जितना भी खेल हुआ है वो कांदली के पक्ष में जाता है। नए बल्लेबाज अहमश बलेरे नंबर 5 पर आए हैं। तो बीसीसी की ये रणनीति थी कि अहमश को डेथ ओवर्स के लिए बचाया ये रखे, वो तो करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पहले 4 ओवर्स में उतने रन बल्लेबाज नहीं बना पाए जिसकी की अपेक्षा थी। देखिए, वो जो कहते हैं अजय के जो हाजिर वहीं वजीर, आप बीसीसी को यही लक्ष्य को सामने रख के गेंदबाजी करना होंगे। हालांकि पहले मैच को देखकर हम कह सकते हैं कि इस विकेट में फुल ऑफ रन्स है, बल्ले पे गेंदें अच्छी आ रही है और बैट्समैन बहुत जल्दी अपने आप को इस विकेट के बलस्वरूप ढाल रहा है। और मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि भले विकेट कैसा भी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, वो कभी भी आपको मैच जिता कर नहीं देते हैं। मैच जिताने वाले आपके खिलाड़ी होते हैं, उनके स्किल्स होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि कितने बढ़िया प्लानिंग के तहत बॉलिंग की गई है। नया ओवर लेकर सतीश, पारी का अंतिम ओवर सामना करते हुए अहमश, उठा दिया है गेंद को, फील्डर है डीप में और सीधे फील्डर के गोदी में खेल बैठे। अहमश बलेरे आउट। नंबर आप कौन से नंबर पे भेजते हैं ये डिपेंड नहीं करता है। इनका तो जो खेल है स्वाभाविक, वो वहीं खेलेंगे। आते ही गेंद को उछाल दिया था। हालांकि वो जब ओपन करते हैं तो इस तरह के खिलाड़ी डिप में नहीं रहते। बिल्कुल सही कहा आपने। और अहमश के पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि पहले 4 ओवर्स में ज़्यादा रन्स नहीं आए, बल्ला तो घुमाना था। विकी स्पोर्ट्स की कैप्टन से गुजारिश है आपको टॉस के लिए आना है।
अगला मैच विकी स्पोर्ट्स कुकसे और सरस्वती खालिंग के बीच में होगा। 5 गेंदें बची है और देखना है कि जरार के पास स्ट्राइक आता है कि नहीं, क्योंकि जो कैप्टन है कांदली के, वो चाहेंगे कि जरार को स्ट्राइक से दूर रखे। और जरार एकमात्र बल्लेबाज ऐसे रहे हैं इस पारी में जिन्होंने कुछ आत्मविश्वास भरे स्ट्रोक्स खेले हैं। 24 पर बैटिंग करते हुए जरार। माजिद के पास स्ट्राइक और पहले ही खेल बैठे। थोड़ा सा रफ्तार में परिवर्तन, थोड़ी भूल भुलैया किस्म की गेंद थी। बैट्समैन को लगा कि कमजोर फुल टॉस गेंद है, लेकिन गेंद लगी पैर पर और केवल 1 रन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रिप्ले में हम देखना चाहेंगे थोड़ी बहुत हवा में लहराती हुई गेंद आई थी और यही कारण था कि बल्ले को नीचे नहीं कर पाए थे वहां पर। अब 4 गेंदे और जरार के पास स्ट्राइक है और देखना है 4 गेंदों में जरार क्या करते। बीसीसी चाहेंगी कि कम से कम 2 बड़े हिट आए इन 4 गेंदों पर। जरार सामना करने के लिए तैयार। बेहतरीन गेंद वाइड यॉर्कर। और इस तरह की बॉलिंग जब होती है ना, तो कितना भी अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, मुश्किल होता है बड़े शॉट्स लगाना। This is the amazing bowling, amazing, what a perfect bowling, perfect length and line, wide Yorker just under the bat, well collected by wicketkeeper. Khanli showing his class in bowling. 33 पर रुका हुआ स्कोर। सतीश एक बार फिर से, इस बार आगे निकले, थोड़ा सा रुक कर शॉट खेला है, गैप में जरूर खेला है, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। और बढ़िया फील्डिंग, 2 की कोशिश में है बल्लेबाज। यहां पर मौका बन सकता है, लेकिन आखिरकार पहुंच गए अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर माजिद 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 35 पर पहुंच चुका है। क्या कमाल का बॉलिंग आक्रमण देखने को मिला है कांदली टीम द्वारा। ऋतिक ने शुरुआत की थी, 11 रन देकर 2 विकेट। उसके बाद मयूर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, सिर्फ 10 रन खर्च किए। विशाल ने 1 ओवर किया, 11 रन खर्च किए। और इस आखिरी ओवर में भी बांधे रखा है बल्लेबाजों को सतीश ने। I think wrong and throw from the deep cover fielder. देखिए अजय, आप फ्रंट फुट पे जब कमिट होते हैं तो वहां से शॉट को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगली गेंद, इस बार खेलने की कोशिश नहीं की और ये वाइड है। जी हाँ, सही फैसला वहां पर बैट्समैन का कि इस बार स्ट्रोक खेला नहीं। अतिरिक्त रन मिलता हुआ बीसीसी को। काफी संघर्ष करना पड़ा है इस पूरी पारी में बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए। स्कोर इस समय 36 रन। 3 बल्कि 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। केवल 2 गेंदे पारी में शेष। इस बार स्मैश किया है बैकफुट पर जाकर, बॉलर के बगल में से खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है समीर के रूप में। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसके अनुसार भी हमने बॉलिंग देखी है और कहीं भी ढील नहीं छोड़ी है गेंदबाजों ने। 1 या 2 शायद कमजोर गेंदें रही है पूरे पारी में, उसके अलावा बहुत ही पैनी और धारदार बॉलिंग देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि सीजन के पहले ट्रॉफी में आप जब इस तरह फील्डिंग करते हैं तो ये जताता है कि आपकी टीम की फील्डिंग कितनी उच्च स्तरीय है। पारी की अंतिम गेंद देखिए, फिर से ब्लॉक हॉल में लगभग खदेड़ कर निकाला है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। दूसरे का प्रयास जरूर यहां पर, लेकिन बहुत दूर रह गए माजिद और रन आउट। तो अंतिम गेंद पर विकेट का पतन और केवल 1 रन आखिरी गेंद पर बना पाए हैं माजिद। पारी खत्म होती हुई बीसीसी बोरीवली टीम को कहीं ना कहीं उम्मीद से परे उनकी बैटिंग रही है। जरार ने जरूर अच्छी बैटिंग की, लेकिन अन्य बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। तो केवल 38 रन बीसीसी बना पाई है अपने निर्धारित 5 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर। और एक छोटा सा ये टारगेट कहा जा सकता है जीतने के लिए 5 ओवर्स में 39 रन बनाने होंगे एसएम कांदली टीम को। वक्त हुआ है अगले मैच के टॉस का और आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे सुपर ट्रॉफी के टॉस बॉक्स में, जहां पर विकी स्पोर्ट्स कुकसे और खालिंग टीम के बीच में टॉस होने जा रहा है। इट्स ओवर टू यू योगेश पाटील। धन्यवाद अजय। सुपर ट्रॉफी 2021चा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना आपण दरम्यान नाणेफेक करतात। विकी स्पोर्ट कुकसे विरुद्ध सरस्वती स्पोर्ट खालिंग अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल। एका बाजूला असतील बबलू पाटील तर दुसऱ्या बाजूला असतील विवेक शेलार। मिस्टर मोहम्मद कैफ, आपको आगे आना है। आपके हाथों से टॉस यहाँ पे हम करेंगे। दोन्ही संघांना प्रथमतः खूप शुभेच्छा। एक चांगली मॅच होईल प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी। तर प्रथमतः मी तुम्हाला नाणं दाखवतो। एका बाजूला असणार आहे ट्रॉफी 2021 तर दुसऱ्या बाजूला आहे पीटीसी अर्थात पडगा टेनिस क्रिकेट। 5 षटकांचा सामना दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी।
सुपर ट्रॉफी कॉल आहे परंतु आलेला आहे पीटीसी म्हणजे हा नाणं जातो विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाच्या बाजूने. तर कशा प्रकारे तुम्ही स्पर्धा ते म्हणजे आता फिल्डिंग घेणार आम्ही. 5 षटकांची मॅच काय रणनीती असेल तुमची सरस्वती स्पोर्ट खाली संघाच्या अगेन्स्ट? कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि हंगामाला सुरुवात झालेली आहे. पहिला आहे आपल्या तर प्रतिस्पर्धी संघाला किती धावांपर्यंत तुम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करणार? असा कोणता खेळाडू आहे अपोजिट संघामध्ये त्याला स्वस्तात? यतीश आहे, विवेक आहे, विद्यानंद आहे. कारण की तुम्हाला या सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. यतीश, तुम्ही टॉसची मागणी केली परंतु तुमच्या बाजूने मात्र नाणं लागलं नाही. प्रथम तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे तर किती धावांपर्यंत तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न करणार? 50+ जाण्याचा प्रयत्न. आणि यासाठी काय आहे तुमची रणनीती? रणनीती तर ग्राउंडमध्येच बघणार. यतीश, आपण या ठिकाणी आल्यानंतर तुम्ही कशा रीतीने ही स्पर्धा पाहता? स्पर्धा खूपच छान आयोजन केले आणि सुपर ट्रॉफी म्हणजे या परिसरातली सुपर ट्रॉफीच आहे. आणि या सुपर ट्रॉफीमध्ये सुपर खेळ तुमच्याकडे आम्हाला पाहायला मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा करू शकतो. हो, नक्की प्रयत्न तर करणारच. तर आज एक चांगली मॅच होईल. हो, नक्कीच. तर दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. मित्रांनो, टॉस संपन्न झालेला आहे. विकी स्पोर्ट वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट अगेन्स्ट सरस्वती स्पोर्ट खालिंग. ओ टू यू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद योगेश पाटिल. सुपर ट्रॉफी की सुहानी आज दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मौसम बहुत ही खुशगवार है, हल्की हवाएं ठंडी बह रही है, खिली हुई धूप है और सुपर ट्रॉफी में सुपरमैन हमारे नेवा पाटिल, त्रिशूल टाइगर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपका हार्दिक स्वागत है. मुकाबला चल रहा है बीसीसी बोरियोली पड़गा बनाम साथ ही साथ नेवा पाटिल, रोशन पाटिल, त्रिशूल ठाकरे और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मुकाबला चल रहा है. बीसीसी बोरियोली पड़गा बनाम एसएम कांदली के गेंदबाजों ने अगर जरार मुल्ला को हम निकाल देते हैं तो बहुत कमाल की 2 रन का पेनल्टी दिया गया है यहाँ पर कांदली टीम को ट्रैक अलग होने की वजह से. तो टारगेट जो 39 रन था वो 41 हो जाएगा. दोनों कैप्टन इस बात को सुन ले कि पेनल्टी को हमने ऐड किया है. जो टारगेट 39 था 41. क्या योगेश पाटिल अब बीसीसी के गेंदबाजों को करना होगा जहां पर वो दबाव बढ़ाए, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है. या ठिकाणी मात्र गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. खास करून पॉवर प्लेची 2 षटकं. बावीस सर, जर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर कमीत कमी धावांपर्यंत जर मीनाक्षी स्पोर्ट खाली संघाने फलंदाजांना थांबवण्यामध्ये जर बीसीसी संघाला यश आलं तर मात्र येणाऱ्या काही षटकामध्ये फलंदाजांना ते दडपण टाकू शकतात. यस, और विकेटें लेकर दबाव बढ़ा सकते हैं आप. यही कारण है कि मरता क्या ना करता. यही कारण है कि मरता क्या ना करता मैजिक ऑफ पड़गा राही शेख को मोर्चे पे लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ 41 का लक्ष्य है. वो भी 2 रन पेनल्टी के मिलना ऐसे है जैसे मानो तिनके का समंदर में सहारा मिल रहा हो. बहरहाल सुपर ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. सुपर ट्रॉफी का ये पहला दिन है. सुपर ट्रॉफी कल भी पीटीसी फॉर्मेट में रहेंगी, लेकिन डे आफ्टर टुमारो आप 3 जिले के सुपरस्टार खिलाड़ियों को देखेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ. सुपर ट्रॉफी से कहीं भी मत जाइएगा. धीरे धीरे आप दर्शक, क्योंकि पड़गा उसका परिसर पिछले, अगर योगेश मैं 30-35 साल की बात करूं तो ये वो इलाका है जहां पर क्रिकेट सिर्फ देखा नहीं जाता है. क्रिकेट के जानकार लोग हैं, एनालाइज करते हैं. मैच भिवंडी में महापौर चषक में चले या बाली ट्रॉफी में, एनालाइज बहुत परफेक्ट रहता है. यहाँ पर यहाँ की जो ऑडियंस है उनके बारे में मैं कहूँगा, एक टाइम इंग्लैंड के ऑडियंस का ऐसा था कि अच्छे डिफेंड पे तालियां बजाती थी, और पड़गा और उसके परिसर का जो पूरा इलाका है यहाँ पे इसी तरह की ऑडियंस है. सो बैक टू क्रिकेट नाउ इज गोइंग टू बी राइज शेख ओपन द बॉलिंग अटैक. सही सोच है शाहिद खान की. उन्होंने अपने मेन फ्रंट लाइन बॉलर राइज शेख से शुरुआत की है. ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटिया एंड अंपायर दिनेश नाइक. is going to be Rahil Sheikh. Facing him batsman Rutik.
Boss to Rutik, who step out, fine delivery, dropping shot just past the bat. Well collected by wicketkeeper Amash Balere, and there will be no runs. Lot of depend on Rahil Sheikh. Is the wicket taker bowler, is the magic of Barga, one of the class bowlers since 2 seasons. Rahil, boss, beauty, just past the bat. What a start from Rahil, Yogesh. ज्याप्रमाणे अपेक्षा केलेल्या आहेत बीसीसी बोरिवली संघाने त्याच अपेक्षेनुसार मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी आपण पाहतोय कारण पहिल्या 2 चेंडूवर मात्र फलंदाजला ती मात्र बेट करतोय कॉन्फिडन्स वाढलेल्या अशा चेंडूने गोलंदाज राहिलचं Rahil Sheikh. Boss to take another fine delivery, this time cutting back to the batsman, but length is perfect. This is the excellent bowling right on the good line spot, and what a reply from BCC's bowler Rahil Sheikh. So far 3 dot balls. Rahil Sheikh up to the wicket now, turn from Krunen. Both this time batsman check his stroke, loose bottom and push in covers, and they threw for 1. So Kandli SM off the mark with 1 and 1 for no wicket. BCC badly needing some wickets here, and SM Kandli needing some huge hit because mandatory power play. But what a good start from Rahil Sheikh. In previous 4 balls he considered only 1 run. Next match, clash of titans between Kukse and Khaling. Vivek Shelar versus Bablu. This time, oh, delicate! This time a delicate stroke played by batsman. Samir opened the face of the bat and guide very late for 4. या फटक्याचं आपण जर विश्लेषण केलं बावीस तर ताकदीचा कमी आणि युक्तीचा जास्त वापर पाहिला आपल्याला Yes, absolutely true. Minimum effort and maximum result. Delightful late cut between gully and short Thurman, racing all the way to the boundary for 4. What a stroke played by Samir, one of the great all-rounder. He is on 4 and his score is 5 without loss. Kandli. Rahil Sheikh, Shahid Khan adjustment in the field now. 2 men outside the ring in V shape like wide long on and mid off, sorry. This time not a excellent stroke. He tried to max room and fine delivery from Rahil Sheikh. That marks end of the first over. Kandli chasing a target of 41, 5 without loss. Yogesh, what do you think about first over? Not enough run on the board, but they have 10 wickets in their hands. विकेट इथे मात्र गमावला नाही कांदे संघाने परंतु ज्या धावा त्यांना येणं गरजेचं त्या पहिल्या षटकामध्ये त्या धावा मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला नाही फक्त आणि फक्त 5 धावा टार्गेट आहे 41 धावांचं आणि आता मात्र येणारे 24 चेंडू अर्थात 4 षटक तर केले आपण अजूनही पाहणार आहोत आणि 4 षटकांमध्ये विजयासाठी आपण जर पाहिलं तर अजूनही 36 धाब्यांची आवश्यकता आहे. यस, आस्किंग रन रेट 9.00 का है और शाहिद खान ने इस तरह के कई मैचेस है जिसमें कप्तानी की है, लेकिन ये सुपर ट्रॉफी है, इसमें आपको अगर रहना है तो सुपर से ऊपर खेलना होगा. जिस तरह की गेंदबाजी SM कांदली ने की थी, BCC को वही जवाब देना होगा. हालांकि गेंदबाजी के लिए माजिद शेख आए हैं, सामना करेंगे उनका बैट्समैन ऋतिक. 1 रन बना के खेल रहे हैं, समीर ने 4 रन बनाए. देखिए इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं योगेश, वहां पे आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती. हालांकि मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर माजिद शेख समय के लिए कॉपरेट करें BCC. अगला मुकाबला, व्हाट अ मैच. विवेक शेलार जो TDPL में विकेटों के भरमार गेंदबाज थे, तो बबलू कल्पेश बबलू ने गजब की बल्लेबाजी की थी. माजिद शेख लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स. और बढ़िया गेंद लॉन्ग वे शफल करके खेलने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर के पास. विकी स्पोर्ट कुक्से के कैप्टन, आपको हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है. विकी स्पोर्ट कुक्से, देखना ना भूलिए सुपर ट्रॉफी का अगला सुपर मुकाबला. क्या कल्पेश बबलू का बल्ला बोलेगा, क्या विवेक शेलार प्रिंस ऑफ भिवंडी की गेंदबाजी
में क्या धार रहेंगी। लेकिन बहरहाल ये मैच धीरे धीरे रोमांचक स्थिति पे बढ़ता हुआ, अब तक 5 डॉट गेंदे खेल चुके हैं बल्लेबाज माजी शेख, और इस मर्तबा चूके और वाइट, सुकीला माफी नहीं। 1 रन से स्कोर 6 पे पहुंचा है। योगेश, इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं उसमें आपको वाइट और नो पे बहुत कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ये वो रन रहते हैं जो सामने वाले को बिना काम के मिल जाते हैं। बिना पायल के बजे घुंघरू। यस, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा आगे रखा था, बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे जरा रहे वाइट खड़े थे, 1 रन बनता हुआ। देखिए सोच बहुत अच्छी है फील्डिंग की शाहिद खान की, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है, कोन बना के गेंद नेचुरल स्विंग पे बाहर जा रही है, और वही कारण था कि पिछला शॉट सीधा जरार के पास ट्रैवल कर गया। अब बल्लेबाजी के लिए समीर तैयार है, स्कोर है 7 रन। क्या लगता है योगेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज्यादा ही दबाव यहां पर एक्सेप्ट किया है ओपनर्स ने, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में आपको हाथ खोलने थे, अभी तक खोलने नहीं दिए। आणि त्यावेळेस आपण या ठिकाणी एक प्रिटेशन केली होती की जर पारपच्या षटकामध्ये जर कमीत कमी धावा जर गोलंदाजाने खर्च केला तर मात्र फलंदाजांना दडपण येऊ शकतो, आणि ती स्थिती आता मात्र आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळते। त्रिशूल टाइगर TDPL में भी खुश थे, लेकिन परगा और उसके परिसर में जब क्रिकेट शुरू होता है तो एक अलग ही रंग रहता है उसका। माजी शेख इस मरतबा खड़े खड़े स्टाइल एंड डिलीवर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, मूड को बना दिया है, सामने रख दिया था बल्लेबाज समीर के। समीर घरत, क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में योगेश आप? जबरदस्त टायमिंग, चेंडू ज्यावेळी मात्र बॅटला स्पर्श झाला ना की त्या फटक्यावर मोर एक छाप पडली होती 6 धावांची, आणि या फटक्याची अत्यंत गरज होती ती म्हणजे SM स्पोर्ट कांदली संघाला। यस, प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज किया, हालांकि माजी शेख ने बिल्कुल सामने रख दिया था। ये ऐसे जब आप शेर के सामने मांस रखते हो, होना ये चाहिए शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाएंगे। इस मरतबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। हवा में जरूर थी लेकिन महफूज शॉट। अब कहना होगा पलटवार, कांदली का शुरू होता हुआ 17 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरा है, और चिंताएं अब बढ़ती हुई BCC की। बारी बारी सबकी बारी, कभी तुम्हारी तो कभी हमारी। आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर गोलंदाजाने वर्चस्व ठेवलं होतं या सामन्यावर, परंतु आता मात्र फलंदाजाने मात्र पलटवार केलेला आहे। धावसंख्या पाहू शकता आपण 17 धावा, 17 रन। ऐसा नहीं कि मुकाबले की जान निकल गई हो, लेकिन मुकाबले में जान लाना है तो फिर गेंदबाजी में जान डालना होगी। माजी शेख लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, अपने स्टेप में चूके, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए खींच के मारा, हवा में गेंद है, फील्डर आ रहे, बढ़िया कैच, और आउट हो गए समीर घरत। सम्मान्य रमेश पाटिल, हमारे बीच में रमेश पटेल आए हैं तलोली के, और कामरान पटेल, दोनों का हम इस्तेकबाल करते हैं, और दोनों से इल्तिमास है कि हमको आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? नक्कीच कुठेतरी मित्र म्हणे की समीरने थोडीशी घाई केली, कारण तर ज्या धाब्यांच्या आवश्यक धावा मात्र या षटकामध्ये आलेल्या होत्या, परंतु कुठेतरी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा जो मोह त्याला लाभला होता तो मात्र कंट्रोल तो करू शकला नाही, आणि एक चुकीचं शॉट सिलेक्शन पाहिलं, चेंडू भरपूर वेळ हवेत गेला, आणि मात्र कोणत्या प्रकारे क्षेत्ररक्षकाने मात्र चूक केली नाही। विकेटची आवश्यकता होती BCC बोरिवली संघाला, आणि तो विकेट प्राप्त करून दिलं ते म्हणजे गोलंदाज माजिदने। बिल्कुल, वो जो कहते हैं कि जहां से जागे वहीं सवेरा। समीर को आउट करने में कामयाब रहे। समीर ने 4 गेंदों का सामना किया था और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बनाए थे। अब
स्कोर है 17 रन, 1 विकेट। ओवर नंबर 2 चल रहा है। 41 के लक्ष्य का पीछा करे एसएम कांदली। एसएम कांदली की जो गेंदबाजी रही थी वो बहुत ही लाजवाब रही थी। नए बैट्समैन ऋतिक का साथ निभाने के लिए ऑलराउंडर मयूर जादव आए हैं, जो कि बहुत ही फेमस ऑलराउंडर है पीटीसी पड़गा टेनिस क्रिकेट में। लेकिन देखना है माजिद शेख ऋतिक के लिए। ऋतिक ने पहले ओवर में बहुत किफायती गेंदबाजी की थी, हालांकि जरार ने एक बाउंड्री भी उनको लगाई थी, लेकिन शाहिद खान को पहली गेंद पे आउट किया था। इस मरतबा ऑन दी अप खेला है, फ्रंट फुट पे आकर गेंद पीछे सरक रही है। थोड़ी हाना चलती हुई, लेकिन रन पूरे होते हुए 2 रन से 2 ओवर की समाप्ति। रन बने 19, विकेट गिराए 1। क्या लगता है कौन सा रास्ता है अब बीसीसी के पास, जहां पे 3 ओवर में 22 रन चाहिए? व्हाट डू यू थिंक योगेश, इस कौन सी ऐसी चीज करना होगी कि बीसीसी मैच में वापस आए, और कांदली को क्या करना होगा? नक्कीच माझं स्वतःचं मत आहे की या अजूनही 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 22 धावा इथून मात्र जोडायचे आहेत, ते म्हणजे एसएम स्पोर्ट कांदली संघाला. तर या ठिकाणी बीसीसी बोर्ड संघाला एकच आवश्यकता आहे की अटॅकिंग फील्ड प्लेसमेंट. जर तुम्ही अटॅकिंग फील्ड प्लेसमेंट जर इथे मात्र सजवली तर तुम्ही या 22 धावा ज्या आहेत 18 चेंडूमध्ये जोडायच्या आहेत कांदली संघाला, त्या धावा तुम्ही रोखू शकता. परंतु या ठिकाणी एखादा मोठा फटका जर फलंदाजाच्या बॅटमधून जर आपल्याला पाहायला मिळाला तर मात्र जे थोडंसं प्रेशर फलंदाजावर आहे तो मात्र थोडंसं कमी सुद्धा होऊ शकतो. या क्षेत्रशी लावून घ्यायचं आहे. यस, प्लेयर्स स्टैंड में खिलाड़ी बैठेंगे, उनके मैनेजर और हमारे वॉलेंटियर्स, प्लीज बाकी कोई भी ना बैठे, हमें सहयोग करे। आपने सही कहा, यही कारण था कि जब भारत ने पाकिस्तान के सामने टारगेट रखा था, अटैक नहीं किया गया, विकेटें नहीं ली गई। आपको जब आप एक ऐसे स्कोर के पास रहते हैं जिसको डिफेंड करना है, तो आपको विकेटें लेना होती है, आपको अटैक करना होता है। और अक्सर कहा जाता है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। देखना है कि मरता क्या ना करता, राही शेख को कंटिन्यू रखा गया है, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है मैजिक ऑफ पड़गा। सामना करेंगे बहुत मशहूर ऑलराउंडर मयूर जादव। फील्ड की जमावट देखिए, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। ये स्पर्धा बिल्कुल आईसीसी रूल पे खेली जा रही। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, जिसमें 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। इस मरतबा हवा में, ओ माय गॉड, छोड़ दिया गली में कैच। हालांकि वाइड ऑफ वाली थी, और ये मौका और ये जीवनदान महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कैच भी मयूर जादव का था। माजिद शेख के लिए आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा है। गली में गेंद गई थी, और मैं अक्सर कहता हूं कि गली के जो चक्कर है वो अच्छे नहीं रहते हैं, चाहे क्रिकेट की गली हो चाहे महबूब की गली हो। लेकिन यहां पकड़े जाने से बच गए बैट्समैन। राही शेख क्रून एंड से गेंदबाजी करते हुए, मयूर जादव को बहुत खूबसूरत शॉट, पैरों के सामने ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन। 1 रन से स्कोर कांदली का 20 रन। अब 21 रन और चाहिए, गेंदे बची है 16। योगेश, मैच जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मैच कहीं सुपर ट्रॉफी का सुपर मैच ना हो जाए। लेकिन इस तरह के इक्वेशन में एक बड़ा शॉट आता है तो मानो आप पे से दबाव छट जाता है। राहिल, एज एंड ड्रॉप, क्या हो रहा है? इसीलिए तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। लगातार कैचेज छूट रहे। राहिल शेख काफी नाराज है। शाहिद खान अब थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बैट्समैन को जीवनदान दिया योगेश, और ये जो कैचेस छूटे कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। हालांकि कोशिश हो रही है, और कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन अब क्या किया जाए, मैं पहले भी कह चुका था कि आपकी किस्मत ही खराब है अगर आप ऊंट पे बैठे और आपको चूटी काट ले। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए राहिल शेख, इस मरतबा गेंद को आने दिया, बहुत ही खूबसूरत स्टीयर शॉट, 4 रन। देर से बल्ले
के मुंह को खोला था और लेट कट के रूप में खेला था, गली और फ्लाई स्लिप के बीच में से 4 रन। डिलाइटफुल, आंखों में समा जाने वाला शॉट खेला है और गेंदबाज के पेस को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया योगेश। सुरेख फटका इथे मात्र ऋतिकच्या बॅटमधून पाहिला आणि या चौकाराने कुठेतरी थोडंसं प्रेशर फलंदाजाच्या वरून थोडंसं कमी होईल, कारण चौकार इथे प्राप्त केला फलंदाजाने। अब कठिनाइयां बढ़ती हुई इस चौके से बीसीसी की 26 रन हुए, 1 विकेट गिरा है। यहां से अभी भी 15 रन चाहिए, जबकि गेंदे बची है 14। रन टू बॉल इक्वेशन इतना भारी नहीं रहता है। 9 विकेट जब आपके हाथ में हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है बल्लेबाजी का। राही शेख और इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, लेग कटर डालना चाहते थे शॉर्ट फाइन लेग पर, या खुद की अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। अब देखना है कि देखिए राही शेख अपने 2 ओवर कर चुके हैं, माजिद शेख 1 ओवर कर चुके हैं। अब देखना है कि गेंदबाजी के जो ऑप्शंस हैं उसमें अब कौन आता है, क्योंकि रन टू बॉल इक्वेशन ये ऐसे ही रहता है मानो शेर के जबड़े से गोश्त के लोथरे को आप खींच रहे हो। मंसूर शेख भी काफी उदास हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस पहले बल्लेबाजी में रहा बीसीसी का। निकल के मारने की कोशिश, बॉल अपने आप को यॉक कर दिया और राही शेख ने आखिर चलता कर दिया बैट्समैन ऋतिक को। आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा था। ये देखिए निकल के मारने की कोशिश थी, अपने आप को यॉक किया और विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती हुई गेंद विकेट के रूप में। ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने, 26, 2 ओवर बचे, 15 रन चाहिए। लेकिन वो जो कहते हैं सांस है तो आस है, मैच अभी भी जिंदा है, मैच स्टिल ऑन। लेकिन चौथा ओवर दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीसीसी चाहेंगी कि उसमें कम से कम रन आए और कांडली चाहेंगी कि मैच को वहीं पर मोड़ दिया जाए। तो क्या होगा इस मैच का रिजल्ट, आइए सुनते आगे की कहानी योगेश पाटील की जुबानी। धन्यवाद भावेश सर। ड्रिंक्स ब्रेक आहे, तत्पूर्वी आपण सुपर ट्रॉफीचे सुपर स्पॉन्सर यांचे आपण या ठिकाणी आभार व्यक्त करूया। पहिल्या क्रमांकापासून तर 4थ्या क्रमांकापर्यंत अतिशय सुंदर आणि भव्य दिव्य ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर केलेल्या आहेत खालिंगावचे उद्योजक सन्माननीय यतीश शेलार यांच्या माध्यमातून मी त्यांचा आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी सुंदर ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहेत सन्माननीय गणेश शेलार, यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। मॅन ऑफ द मॅच साठी सुंदर ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेली आहे सन्माननीय भगवानजी भोईर आणि केक पेस्ट्री आम्हाला लाभलेली आहे नीतू भोईर, भोईरपाडाचे उद्योजक आहेत, त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज आणि फलंदाजसाठी एलसीडी टीव्ही आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहे सन्माननीय तुकारामजी घोडविंदे, डोळेगावचे उद्योजक आहेत, त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर पहिल्या क्रमांकासाठी कॅश प्राइज आम्हाला लाभलेले आहे माजी सभापती सौभाग्यवती वैशालीताई विष्णू चंदे मॅडम आणि सन्माननीय विष्णुदादा चंदे साहेब यांच्याकडनं, त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। द्वितीय क्रमांकासाठी रोख रक्कम 50,000 रुपये आम्हाला लाभलेले आहेत वापले गावचे प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय संदीपजी काटोले, यांचा मी आभार व्यक्त करतोय। तिसऱ्या क्रमांकासाठी ग्रामपंचायत सदस्य चिंचवली सन्माननीय गिरीश पाटील यांच्याकडे आम्हाला 25,000 रुपये कॅश प्राइज लाभलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। मैं आपको रोकूंगा, हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर राजाराम शेलार जी का आगमन हो चुका है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मशहूर क्रिकेटर यतीश शेलार की ये पिताश्री है, मोस्ट वेलकम, आपका सुपर हार्दिक स्वागत है सुपर ट्रॉफी 2021। और आपसे निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे बैठ के उसकी शोभा को बढ़ाना है। प्लीज राजाराम शेलार साहब, आपको हमारे मंच पे आना है। आणि या खास वैशिष्ट्य म्हणजे या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी आम्हाला बाईक लाभलेली आहे सन्माननीय सुजित ढोले उर्फ पप्याबाई आणि संदीपजी ठाकरे माजी सरपंच ग्रामपंचायत कुकसे बोरिवली, यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। तर जाऊया मात्र आपण मॅचच्या दिशेने। 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 15 धाब्यांची गरज। सिन्नान खोत आहे, वैयक्तिक पहिलं आणि या सांघिक चौथं षटक इथे मात्र अटकने हाताळेल ओर द विकेटने। शॉर्ट पिच चेंडू हुक करतोय, जबरदस्त फटका चेंडू गॅप मध्ये ट्रॅव्हल होतो या डीप मिडविकेटच्या दिशेने।
एक धाव पूर्ण केली आणि असं वाटतं की हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत एक रोमांचक मॅच तुम्हाला इथे मात्र पाहायला मिळेल अशा प्रकारची शंका नाकारता येणार नाही. आपको तो पता है शाहिद खान ने महिंद्रा की कैप्टनशिप की कई बड़ी टीमों की. शाहिद खान जब टीम में रहते तो मैच तो छोड़ेंगे नहीं. सिन्नान पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, परंतु ऑप्स्टिकच्या खूपच बाहेर पंच आमच्याकडे वळतायत. वाईटचा इशारा. ज्याच्या वेळी अशा प्रकारचे सिक्वेशन असतात त्यावेळी तुम्हाला या धावांवर कुठेतरी मात्र लगाम लावणं गरजेचं आहे. अतिरिक्त धावा इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यस, बैट्समैन को टिप नहीं देना चाहिए. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू जे फेकी पडल्यानंतर थोडासा चेंडू खाली राहतो. या ज्या अनुमानाने मात्र फलंदाजाने चेंडूची वाट पाहिली होती त्या अनुषंगाने मात्र चेंडू आला नाही आणि त्याचमुळे कुठेतरी बीट होताना आपण पाहिलं फलंदाजाला. देखिए योगेश, सिन्नान खुद का जो बॉलिंग एक्शन है वो बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां पेश करता है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह बुमराह आजकल आए हैं या पॉल एडम को हम देखते हैं या साउथ अफ्रीका के जो उस दिन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, बॉलिंग एक्शन भी कहीं ना कहीं बल्लेबाज की एकाग्रता को भंग करता है. नक्कीच आणि त्याच उद्दिष्टाने मात्र चांगली सुरुवात या षटकाची आपल्याला पाहायला मिळते. या पुन्हा एकदा तशा प्रकारचा चेंडू खाली राहतो. या असं वाटतं की कुठेतरी मात्र त्या ठिकाणी स्पॉट आहे आणि त्या स्पॉट नुसार मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळते या चिन्हांच्या माध्यमातून. बिल्कुल आपने कहा गेंदें नीची रह रही है, खाली रहतो. कहीं ऐसा ना हो बल्लेबाजी खाली हो जाए. आणि आता मात्र सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होते कारण 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता मात्र विजयासाठी 13 धाबींची गरज. काय सामना इथं मात्र प्रेक्षकांना पाहायला मिळतो. या असं वाटतं की जागेवरूनच मात्र खेळण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर. दुसरा स्क्वेअर चेंडू या षटकामध्ये आपण पाहिलं व्हाईटच्या स्वरूपात. देखिए लाइन बिलोंग्स टू अंपायर. कहा जाता है कि अंपायर चाहे तो वाइट दे चाहे तो ना दे, लेकिन इट हैज बीन अ वेरी वेरी क्लोज इंडीड. क्या बॉलिंग हो रही है. अभी भी मुकाबला छोड़ा नहीं है और अभी भी जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 12 हैं जबकि गेंदे बची है 9. क्षेत्र कुठलाही असू द्या तुम्हाला प्रयत्न मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत करणं गरजेचं आहे आणि तोच प्रयत्न बीसीसी बोरिवली संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. या 9 चेंडू विजयासाठी 12 धाबींची गरज. आता मात्र संपर्क पाहायला मिळतो. स्टँड अँड डिलिव्हर. व्हॉट शॉट. चेंडू ऑफ द पार्क लॉन्ग ऑन सीमेरीच्या पलीकडे हा संघर्षमय षटकार. देखिए खराब गेंद तो नहीं थी लेकिन बैकफुट पे जाके फोर्स किया था. कमाल का शॉट खेला था वहां पे बैट्समैन ने. आइए देखते हैं थोड़ा सा डेप्थ ऑफ द क्रीज जिसे कहते हैं क्रिकेट में, उसका अच्छा इस्तेमाल किया था. हालांकि गेंद इतनी ज्यादा खराब तो नहीं थी लेकिन शॉट बनाया वहां पर. सुपर शॉट. ये देखिए आने का इंतजार किया और फिर वार किया, और वार भी कब किया जब लोहा गर्म था. या षटकाराने आता मात्र पूर्णपणे कॉन्फिडन्स वाढेल फलंदाज रोशन दलवीचं कारण या अगोदर 2 डॉट चेंडू तो मात्र खेळला होता. थोडंसं प्रेशर त्याच्यावर पाहायला मिळत होतं परंतु या ठिकाणी टायमिंग लाजवाब पाहायला मिळाली. धावसंख्या आता मात्र वेग पकडतोय 35 धावा फलकावर. अजून एक मात्र फटका व्हायला मिळतो. चेंडू हवेत आहे. उंची प्राप्त पाहायला मिळते परंतु अंतर प्राप्त होणार नाही कारण लॉंग ऑफ च्या दिशेने मात्र जरार करणं चूक पाहायला मिळतो. या क्रिकेटच्या खेळामध्ये सिद्धिक सर नेहमीच आपण म्हणतो या पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ, कॅचेस विन द मॅचेस, परंतु हा झेल जरारच्या माध्यमातून ड्रॉप होताना आपण पाहतोय. देखिए स्कोर इस वक्त 37 रन हो चुका है और ये जो कैच, मसला क्या है कि मैच की सिचुएशन क्या है, मोमेंट क्या है. ये कैच इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 रन गए, कैच भी छूटा है. कैच छूटने के बाद जो 2 रन गए वो सरदर्द बन सकते हैं. खूप मोठी चूक मित्र म्हणून या ठिकाणी या बीसीसी बोरिवली संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या जीवनदान मिळतो या रोशन दलवीला आणि या जीवनदानाचा मात्र फायदा उचलेल का, मॅच फिनिशर मात्र ठरू शकेल का पाहूया. सिन्नान पुन्हा एकदा इथे मात्र एज लागते. या एक धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि मात्र सहजपणे ती धाव इथे पूर्ण केली दोन्ही फलंदाजाने आणि अशा रीतीने 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येकडे आपण लक्ष वेधूया. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 38 धावा. दोनों टीमें सुन ले, सुपर ट्रॉफी हमने रखा है. पड़गा और उसके पूरे परिसर का सुपर क्रिकेट हो रहा है. अगर मैच टाई हुआ तो सुपर ओव्हर भी रहेगा. नक्कीच आणि प्रेक्षक सुद्धा मात्र अशाच सुपर ओव्हरची मात्र वाट पाहत असतील कारण आता मात्र येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि विजयासाठी धाबींची आवश्यकता आहे ती म्हणजे 3 धावा. देखिए क्या होता है, कल का जो सेमीफाइनल मुकाबला था, एक लम्हा ऐसा था कि लगभग मैच 80%
जब 15 ओवर समाप्त हुए थे इंग्लैंड के हिस्से में चला गया था। देखिए वहां पर जो निशाम का रोल था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने थे, एक बात थी उसमें कि उनको पता था अगर यहां से मैं मैच हारा तो न्यूजीलैंड समय में कोऑपरेट करें प्लीज। न्यूजीलैंड के जो कोच हैं, न्यूजीलैंड के ऑडियंस हैं, उनकी टीम कुछ भी उनको कहेंगी नहीं, क्योंकि जिस तरह का इक्वेशन था, यही कॉन्फिडेंस था उनको और यही कारण था उन्होंने कोशिश की और कामयाब हुए। अब यहां से अगर जो ये आखिरी गेंदबाज आए गेंदबाजी के लिए, किसको मोर्चे पे लगाया गया, एमएस बलेरे को, ये अगर मैच हराते हैं तो इनको कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन ये मैच जिताते हैं तो कल वो निशा मौला रोल रहेगा। नक्कीच, म्हणजे हिरो ठरायचं असेल तर मात्र या ठिकाणी 6 चेंडूंमध्ये तुम्हाला 3 धावींचा मात्र संरक्षण करायचं आहे आणि इथे मात्र रोशन आणि फलंदाज मयूरला मात्र सामना जिंकून द्यायचा असेल तर मात्र या ठिकाणी या जोडीला खेळपट्टीवर टिकून राहणं गरजेचं असेल, कारण भरपूर वेळ या दोन्ही फलंदाजांनी खेळपट्टीवर काढलेला आहे. जर या क्षणामध्ये जर एखादा नवीन फलंदाज जर आला तर मात्र त्याच्यावर दडपण येऊ शकतो, प्रेशर येऊ शकतो. परंतु पाहूया तशा प्रकारची गोलंदाजी या शेवटच्या षटकामध्ये एबीच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का. सिली मिडॉन पे शाहिद खान खुद आए हैं, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी सर्कल में. 6 चेंडू विजयासाठी 3 धाब्यांची गरज. एपी ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू डॉट. सामना अजूनही संपला नाही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत आपण म्हणू शकणार नाही की कोणता संघ हा सामना जिंकेल. आणि जर धाबा जर बरोबरी झाल्या या ठिकाणी तर मात्र सुपर ओव्हर मॅच Yes. तुम्हाला पाहायला मिळेल. कमाल की शुरुआत की है. देखना है कि कल अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन निशाम रहे थे क्या आज अहमद बलेरे. 5 गेंदे 3 रन. शाहिद खान एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र गुल होतोय सीमेरेषे पलीकडे 6 धावांसाठी आणि या स्पर्धेतून मात्र प्रवास समाप्त होतोय बीसीसी बोरिवली संघाचा. हार्ड लक अँड कॉंग्रॅच्युलेशन एसएम स्पोर्ट कांदली. एसएम कांदली का आज जो क्रिकेट था, एक बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त दी, उसका उनको हक भी जाता है. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की. हार्ड लक शाहिद खान एंड बीसीसी. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चल रहे हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं ऋतिक इज द मैन ऑफ द मैच. आइए योगेश पाटिल के पास.